ہاں سناؤ. میں کیا بول رہا ہوں، میں مومن ہوں، ہوں. میں قرآن کو مان مانتا ہوں، لیے. حدیث کو مانتا ہوں. آپ مان ایتھیسٹ ہے، لیا میں نے. آپ کس کو مانتے ہیں؟ نہیں ابھی وہ سوال نہیں ہے کہ نہیں میں میں کس کو کیا پوچھا، مانتا ہوں. آپ نہیں سوال نہیں، آپ کس کو مانتا ہے وہ تو بتاؤ نا، تو بات آگے بڑھے گا نا. ساحل میں بھائی میرا بولوں والا کیا کلمہ کہ پڑھ دینا، میرا کلمہ پڑھ دیں ساحل بھائی ان کے لیے، میرا والا کلمہ میں پڑھ دیں. میں ایڈم کو اللہ مانتا ہوں، میں ایڈم کو خدا مانتا ہوں ہاں ہاں، تو اور ایسا اپنے بولو آپ کو نا. رسول مانتا ہوں. ہاں تو کرسچن میں اسٹیپ فادر بہت ہوتے ہیں، ماں ایک ہی ہوتی ہے، کرسچن نہیں اسٹیپ بھائی، یہ فادر نیا. 10 ہوتے ہیں. نہیں ارے آپ بھائی سے کرسچن آپ نہیں. میں کیا بولا، ارے وہ میرے کو نیا 1% سے بھائی. بات کرنے کا ہے. آپ آئی ایڈم کے انڈین. بیچ میں لایا ہے، کہاں لایا؟ تو پھر لائے نا، اس نے بولا نا، میں بولا نا. ارے تم کو ابھی تھوڑی وہ نہ بولا. اسٹیپ فادر 10 ہوتے، ماں ایک ہوتی. آپ دیکھ لو، ایڈجسٹ کر لو اس میں کیا اسٹیپ مدر پرابلم ہے. نہیں ہوتی ہے. فادر ایک ہی ہوتی ہے، اسٹیپ فادر 10 ہوتے کچن میں. یا اسٹیپ مدر نہیں ہوتی ہے زیادہ. یا فادر تو کرسچن کی 10 بات ہوتے نہیں نا، کر رہے. فادر تو 10-20 ہوتے نا. ابھی ان آپ کا کے بھی آپ کے DNA 10-20 ہے. ٹیسٹ کرانا. ارے بھائی کرسچن میں اسٹیپ فادر ہوتے ان کے یہاں 20-30. کرسچن کی. آئی ایم انڈین ارے بھائی. ہوتے نا یہاں بھائی، پہ یہ تو نارمل بات ہے، انڈین اس بھائی، میں کیا انڈین جھوٹ ہے، بھائی، یہ تو سچ انڈین ہے. بھائی، انڈین بھائی دیکھیے یہ ایسی حرکت کرے. یہاں کرسچن کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے آپ کو ایک جواب دیا کہ میں ایڈم کو خدا مانتا ہوں. اس میں کرسچن کہاں سے آ گیا؟ انسان خدا ہوتا ہے. آپ بولو. ہو سکتا ہے میرے لیے ہے. نہیں کیسا ہو سکتا ہے بتاؤ نا. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان خدا کیسا ہوتا ہے، آپ ثابت کرو. کیوں نہیں ہو آیت ہے سکتا؟ سامنے میں ساحل مانتا بھائی، ہوں. آیت میرا قرآن سامنے ہے نہیں جس کو آپ یہ مانتے دونوں ہیں. قرآن بھائی، یہ دو جس ساحل بھائی، ایک آدمی بات کرے. میں پہلے بولا ارے ہوں. تم سے نہیں کر رہا بھائی. اتنا کیوں سینسیٹیو ہوتے جا رہے ہو؟ نہیں آپ نے بولا میں دارو پیا ہوں، نہیں میں کچھ پیتا نہیں. میں دماغ تھوڑا گرم ہے، اس کے لیے تھوڑا ایسا بات کرتا ہوں میں. اچھا گرم ہے کر کے نشے میں لگتے ہو ایسا؟ نہیں نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں. میں کیا بولا، آپ پرسنل بات کرو یا ایڈم کو بول دو بات کرنے کے لیے. نہیں نہیں تو دوسرا پرسن نہیں مانگتا ہے. اگر ایڈم ہے تو بتا ہے بھائی 20 فادر کیوں اچھا ہوتے ہیں. ایک منٹ آئی ایم انڈین بھائی. دیکھو میں تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا ہوں. بہت سے دوسرے لوگ جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ میرے کو ٹائم پاس کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے سیدھا مدے پہ آئیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس آیت پہ ہم کو ڈسکشن کرنا ہے. آپ بتاؤ کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں نہیں، اگر آئی ایم ڈسکشن نہیں سوری، کرنا ہے تو میں میں نکال دیتا ہوں. جاتا ہوں، کوئی جاؤ دقت جاؤ پہلی نہیں. فرصت میں جاؤ. آئی ایم پہلی سوری. فرصت میں جاؤ. نہیں نہیں، اس پہلی ساحل کو بولنا فرصت میں جاؤ. اس فادر. چل چل نکل پہلی فرصت میں نکل. اور بین بیوڑا. پھر گالی دینے لگا تھا بےچارا پھر گالی ہاں دینے لگا اسی تھا. وجہ سے نکال دیا. میں جاتا ہوں. اصل میں یہ میرے کو مومن لگ بھی نہیں رہا ہے کیونکہ یہ بچنا چاہ رہا ہے اس آیت کو پڑھنے سے. یہ صرف ٹائم پاس کرنے آیا ہے. میں نے کہا تھا نا ایک تو ساحل میں نہیں اس سے بات کروں گا. PhD اگر میں ہے. تو گرم ہو گیا تو سوچ میں کتنا گرم ہوتا. میں نے بولا تھا نا میں نہیں بات کرے گا اس سے. اچھا کیا آپ نے بات نہیں کیا. ہاں بھائی مسٹر ایکس گیمنگ. یار کوئی بھی نان مومن پلیز نہ جڑے. سائنس فالوور کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. نان مومن پلیز اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے بھائی. پاپی کلر اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے. جی بھائی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ مومن ہے سر آپ؟ ہاں بھائی. مومن ہے ہوں. ابھی تک ہے؟ ہاں بھائی. ارے تھوڑا زور سے بولو. ہاں بھائی ہاں بھائی. یار ان کا مائک تھوڑا بڑھاتا ہوں میں. پتا نہیں کھانا وانا بھی کھا کے آتے ہیں لوگ یا نہیں آتے. آواز ہی نہیں نکلتی ہے. جی بھائی بولو ابھی کچھ. جی بتائیے آپ. جی کوئی قرآن کی سورہ سنائیے. ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وطر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟
भाई वितर में तो हम एक ही रिका पढ़ते हैं, हाँ, एक रिका। अच्छा आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? जी हाँ। वो माइक थोड़ा अपने मुंह के पास करीब लीजिए ना, ठीक है, हाँ बोलिए। लीजिए लीजिए। हो गया। एक काम करो, हेडफोन निकाल दो। हेडफोन निकाल दो, ठीक है। हाँ निकाल दीजिए। भाई एक काम कीजिए, आप हमसे कल बात कर लीजिएगा। ठीक है, कल कल आ जाना, आप एडम साहब के चैनल पे आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई, भाई 1 मिनट। भाई मुझे मुझे ध्यान देख लीजिए, मेरा एस गेमिंग है, मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? कल ना, ठीक है, मैं आपको कुछ हदीस ठीक। रेफरेंस दिखाऊंगा, फिर आप मुझे उसका प्रूफ दिखाइएगा। और अच्छा माइक लेके आना कल, या तो फिर बिना माइक के बात, अपना बिना हेडफोन के बात करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है? चलिए। चलिए। ठीक है। साइंस फॉलोअर, जी मिस्टर एक्स गेमिंग स्टूडियो जी छोड़ दीजिए आप। हेलो ठीक है भाई। जी, साइंस फॉलोअर मोमिन है आप? जी मोमिन हूँ। मोमिन है, पक्के जी वाले जी हैं क्या ऐसे ही उड़ते उड़ते हैं? पक्के वाले। साहिल भाई इनसे पक्के कई दफा वाले। पहले बात की हुई है भाई, ये बिल्कुल अजीब से मोमिन है यार ना, ये बहुत बहुत डिफरेंट मोमिन है। अच्छा, अलग वाले हैं क्या बहुत? साइंस फॉलोवर, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि यार पहले अब तो इस्लाम में आ जाएं, फिर आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी ना, हाँ तो भाई आप क्यों आ गए? क्या पक्के वाले मुसलमान हो गए हैं? और नहीं, बस दरमियान में ही हूँ। तो भाई फिर क्यों आए हैं ना सर? चलें ठीक है, एज यू लाइक। यानी आपसे बात हो नहीं ना सकती क्योंकि आपने बीच में जाके कुरान की आयत भी रिजेक्ट कर दी, तो फायदा यानी अच्छा आपने चलते चलते बात करते करते आप कुरान की आयत ही रिजेक्ट कर देंगे, तो जो बंदा कुरान की आयत रिजेक्ट कर दिया वो तो मुसलमान ही नहीं है किसी भी इस्लाम के मुताबिक। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम आपसे कैसे बात कर सकते हैं? जी बाहर क्या, मैं आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको अक्सर सुनता रहता हूँ। मैं इसलिए आया, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अ, चलिए जल्दी जल्दी से से कर दें, रिक्वेस्ट कर दीजिए। जल्दी से कर हाँ, दें, जल्दी से कर दें। हाँ जी हाँ जी, वो सिर्फ ये करनी थी कि आप ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान ना आप कुछ खा पी रहे होते हैं, तो वो जो आवाज़ आती है ना वो बड़ी अनोइंग सी होती है, क्या क्या? ये ज़रा अवॉइड करें। चलें सर, नेक्स्ट टाइम जो है ना 8 घंटे की स्ट्रीम में कुछ नहीं खाऊंगा, आप भी मेरे साथ कुछ नहीं हाँ खाएंगे, ठीक है? फिर 8 घंटे नहीं नहीं, फिर खा लिया करें, लेकिन ज़रा माइक को थोड़ा दूर करके ना। यार यार मैंने हेडफोन लगाया होता है ना, बूम माइक मेरे पास, डेस्क माइक नहीं, मैं हेडफोन वाला माइक यूज करता हूँ, हाँ तो वो मैं लेकिन हटा वो नहीं बड़ा, सकता, वो हटाऊंगा तो हेडफोन भी हट जाएगा। हाँ लेकिन वो मैं आपको अर्ज करूँ बड़ा अजीब सा लगता है ना। चलें कोई बात नहीं, कभी कभी तो थोड़ा सा ही हाँ खाता हूँ यार, रोज तो नहीं खाता ना, नहीं कभी थोड़ी 5-10 मिनट के लिए चले खाने की बात आती है ना, चले चले उसमें ठीक बर्दाश्त है, कर लिया थैंक, करें थोड़ा सा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चलें, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक्स अल्लाह अल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार कोई धारदार दांत वाला आ जा भाई। क्या इस्लाम किन भरोसे पे चल रहा है आजकल? चेकमेट साहब, हेलो, आवाज आ रही है? बहुत स्लो यार, क्या हो गया आज? सारे मोमिनों की आवाज जो है वो स्लो क्यों है भाई? आवाज से इनके नहीं होता पास है ना, नीचे ये जो है तो ना गेट वो से रूम होता है कूलर गेट या कोई फैन चल रहा है, तो वो बंद कराएं तो शायद सही हो, पीछे का नॉइज ज्यादा है इस वजह से। से। अच्छा, तो साहिल साहिल भाई और आदम भाई, आवाज आ रही है? अभी अभी ठीक है ना? सर वही कह रहा हूँ, पीछे का कूलर शूलर बंद कराएं, आपके पीछे नॉइज ज्यादा कूलर है तो एज बहुत कम्पेयर दूर टू है योर भाई, वॉइस। बहुत दूर है वो, बंद सर नहीं कर आपका सकते। माइक उसकी आवाज ज्यादा पिक कर रहा है, आपकी आवाज ठीक सप्रेस है, कर रहा है। माइक इस वक्त आपका है वो नॉइज सप्रेशन वाला, तो वो कूलर की आवाज को लेकर आपकी आवाज को सप्रेस कर रहा है। अभी अभी ठीक है। अब बेहतर है, अब बोलिए जरा। जी, टॉपिक क्या है? इस्लाम ओके में साहिल भाई अब फ्री ठीक हो विल गया है, कंपैरेटिवली। ठीक है ना? साहिल भाई क्या बोला एडम? मैंने कहा अब सही हो गया ना आपको? हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी सही है आवाज। चले ले लें इनको। ये जो आप टॉपिक रखिए साहिल भाई, ये
ये आम मोमिन से क्यों पूछ रहे हैं आप लोग सवाल, ये बताओ मेरे को। आप मेरा खास को आपसे लेके आ सवाल। जाइए, खास को लेके आ जाइए, वही खास को लेके आ जाइए। आप भी खास के पास जा सकते हैं ना। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपको सीखना है ना। क्यों तो क्यों यहाँ पे नहीं, आप हमको आम सीखना लोगों नहीं से है क्यों भाई। सीखेंगे आप? हाँ, हमको सीखना नहीं है, हम बता रहे हैं फ्री विल नहीं है, सीखना नहीं वही है। तो, आप आलिम है ना, क्लेरिफाई मुफ्ती करने है आए ना, हो। हाफिज है, कुछ नहीं है आप, लेकिन फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट जो आप आयत पढ़ रहे हैं उसकी हाँ, उसका भी तफसीर होती है उसकी, उसको भी ठीक समझना है, तो जरूरी होता है। उसको आप कर सकते उसको हैं, आप नहीं कर समझ सकते नहीं, क्लेरिफाई? मैं आलिम हूं ना, हाफिज हूं, तो आपको ये बताने लेके आया आओ ना हूँ फिर कि आलिम हाफिज को। आप भी तो जा सकते हैं ना। क्यों? यहाँ लेकिन पे आप क्यों टाइम अपना पास, उसूल, क्यों एक तमाशा मिनट एक भाई, मिनट, चेकमेट ये चेकमेट बोलो। चेकमेट चेकमेट। क्या तुमको घर से उठा के मैं स्ट्रीम पे लेके आया? मैं आपको यही बताने के लिए आया कि ये टाइम वेस्ट पहले खाली मेरे सवाल लोगों का को जवाब दे दो। भटकाना करना, चेकमेट ये सब कहीं को चेकमेट भाई। चेकमेट चेकमेट। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। ये बताओ ठीक, कि तुमको घर से उठा के मैंने स्ट्रीम पे लेके आया? नहीं, नहीं, अपनी मर्जी से आया ना? मैं अपनी मर्जी से इसलिए आया, आपको बताने आया कि आप गलत काम कर रहे हो। नहीं, ठीक है, आप बता दिए गलत काम कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं ना जो आप गलत बता रहे हो वो असल में गलत हो। आपको असल में साबित करना पड़ेगा। असल में आप गलत है ना, आप हाँ, तो वो जो सही साबित करो ना, मैं गलत हूँ। वही, इसी वजह से तो प्लेटफॉर्म दिया है तुमको कि गलत साबित मैं करो। कुरान की जरा वही आयत तो दिखा साबित, दें, चेकमेट साहब, कुरान की आयत दिखा दें जो ये बताए कि ये गलत है एडम कि जब तक एडम आप मुफ्ती या आलम नहीं होंगे आप कुरान के ऊपर बात और बहस नहीं कर सकते। अगर आप आयत दिखा दें मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। क्या 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 शुरू से बोलो। कुरान की आयत दिखा दें जो कहे कि आप कुरान और हदीस पे तब तक बहस नहीं कर सकते जब तक आप मुफ्ती नहीं हैं। प्लीज दिखा दीजिए। अब देखो, मेरे पास आयत ना, मैं पढ़े वाला हूँ ना, ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ मैं, इसीलिए तो कह फिर रहा तो हूँ मेरे को टाइम किसी पास बात जिहाद का कर इल्म रहे हैं ना नहीं है। सर आप। फिर आप टाइम पास जिहाद करें, या तो हमें सुने या टाइम अपने पास स्कॉलर्स को सुन लें। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा, आप लोग का इल्म कहाँ से आया ये बोलो, जो आप सर लोग पढ़ के सब लोगों को बता रहे हैं कि ये गलत चीज है, कि जी ये क्या इस्लाम में फ्री विल है, क्वेश्चन जी मार्क डाले हुए आप लोग, और एक आयत बता रहे हैं कि इसमें फ्री विल नहीं है। ओके, ठीक है, तो उस आयत को पिछले से पढ़िए, आगे से पढ़िए, उसकी तफसीर पीछे तफहीम से जो भी होता है ना, तीनों चलें। उसको अच्छा चेकमेट भाई, अगर मैं उसको इस जानिए। आयत की इस अच्छा, आयत के एक काम सुन करिए, सुनिए चेकमेट सुनिए, सुन एक काम चेकमेट, अभी करिए। आपने एक सेकंड, आपने एक मुद्दा रखा। अगर मैं इस आयत को पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ जहां से इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, 3 आयतें पहले कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता आपको पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। पूरी आप सूरत नहीं पढ़ेंगे अभी पढ़ना। मेरे? नहीं चेकमेट, नहीं, पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी आपको यहाँ पे। मैं चेकमेट, फिर बताऊंगा कि पूरा हे खुलासा क्या लिसन, है इस आयत का। चेकमेट, लिसन। पूरी सूरत नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि कुरान, यार अगर आप गर्म तवे पे नहीं बैठे होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी। कैन यू प्लीज जी स्टॉप बोलिए, एंड इंटरप्टिंग मी? बोलिए। क्योंकि कुरान जो है उसमें सूरतें कॉन्टेक्चुअली नहीं लिखी गई हुई। एक सूरत में बीच में से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। इस आयत का टॉपिक 4 आयतें पहले से शुरू होता है और 2 आयतों बाद खत्म हो जाता है। मैं जो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका पूरा का पूरा पढ़ देता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत इसकी है ये। अब मेरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी। सूरत का नाम क्या है वो जो आप आयत पढ़ रहे हैं? आप मुझे कोई सी एक लंबी वाली इस टाइप की सूरत दिखा दें जिसमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरी सूरत में एक ही हो। सूरह बकरा में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये एक ही कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे एक ये ही बात हो कॉन्टेक्स्ट रही की है बात कि हो रही है। अगर आप आयत पढ़ रहे हैं तो उसकी तफसीर भी पढ़ना चाहिए मैं आपको, तब मैं जाके आपको तफसीर, समझ में चलो आएगा। भाई तफसीर पढ़ने को मैं तैयार हूँ। मैं तो कहा है मैं उसकी तफसीर भी पढ़ने को तैयार हूँ आपके साथ। तो पढ़िए। अगर तफसीर भी तकी और उस्मानी आयत साहब का की तफसीर कॉन्टेक्स्ट बताइए। भी मेरी वाली ही बात कर रहा हो तो क्या आप अपनी बात पे कायम रहते हुए यहाँ पे अल्लाह को एक झूठा गॉड कहने को तैयार होंगे? जी बोलिए जी। मैंने पूछा क्या अब आपसे सर? हाँ, तैयार मैंने होऊंगा कहा मैं, मैं बोलिए, इसकी बताइए। कॉन्टेक्स्ट, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी तफसीर दोनों पढ़ देता हूँ। और अगर पूरी वो वही सूरत पढ़नी साबित, पड़ेगी आपको। सुन लें, पूरी सूरत भी पढ़ देता हूँ और बताएं। ठीक, लेकिन पढ़िए। उसके बाद अगर ये वही कहे जो हम बता रहे हैं तो क्या आप इस्लाम को मेरे साथ यहीं पे खैराबाद कहेंगे? जी बिल्कुल, कन्फर्म? कंफर्म। अगर ना किया तो?
कर दूंगा, बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मेरे साथ आपके ये पूरी स्ट्रीम के सामने बोल रहा हूँ, मैं कर दूंगा। निकालिए तकी उस्मानी साहब की तफसीर और कुरान निकालिए। अच्छा, सिर्फ तकी और उस्मानी की, बाकी जो अर्ली स्कॉलर्स हैं उनको नहीं देखना आपने, सिर्फ तकी उस्मानी हाँ, जरा तकी नहीं, तकी उस्मानी साहब क्यों, की, पहले मुझे बताएं, हाँ, तकी उस्मानी क्यों? आप निकालिए, आप यहाँ नहीं बात नहीं को फेर रहे हैं, नहीं, आप यहाँ फेर पे, नहीं रहा। आप अरे यहाँ पे वजह मुझे बताओ ना। मेंशन करके आप मैं बात को फेर मुझे रहे हैं। तकी उस्मानी अभी की वजह निकालिए बताओ, अर्ली स्कॉलर क्यों नहीं? आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं तकी उस्मानी मैं साहब की, निकाल ये सकता हूँ, बताइए। मगर मैं पूछ रहा यहाँ हूँ कि आपके तकी हार, उस्मानी यहाँ क्यों? पे आपकी, यहाँ पे आपके हार, यहाँ पे एकदम इजी रिवाजें हो यार रही है कितनी भाई। बच्चों वाली बात कर रहे हो। आप मैंने बच्चों वाली कहा बात कर रही तकी हैं। उस्मानी क्यों, सिंपल सवाल किया है। तकी उस्मानी ने ऐसा क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू तफसीर तिबरी, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्न कतीर, तफसीर जलालुद्दीन अस्सयूती? तकी उस्मानी जो है उसने ऐसा क्या खास बात है कि आप सिर्फ उसी की तफसीर मांग रहे हैं? इनके फिरके का होगा, नहीं सिंपल। सर, मैं यही तो पूछना सॉरी। चाह रहा हूँ, क्यों, वो क्यों? जी हजरत, मैं भी वेट कर रहा हूँ। हजरत मैं वेट कर रहा हूँ। क्या इनका इंटरनेट लगता? ये क्या हो गया? अच्छा, जब तक भाई का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चल दिए भाई। यार ये अल्लाह को तकी उस्मानी के कुरान का क्या नाम था यार, मुझे भूल गया उसका, मैं वो खोलने लगा था। आने दो ना भाई को। चलो ठीक है, आप अच्छा शुरू करिए। गाइज, जो लोग देख रहे हैं अपना, जितने मॉडरेटर्स है भाई, हाथ थोड़ा हल्का रखिए आप लोग। जब तक सामने वाला अब्यूज ना करे किसी को वार्निंग के बाद, तब तक आप उनको टाइम आउट या ब्लॉक नहीं दे यार। पहले वार्निंग दे दे अगर कोई अब्यूज कर रहा है। हाँ, कोई अगर सिर्फ इस्लाम की तारीफ विरीफ कर रहा है तो बिल्कुल उसको ना टाइम आउट दो ना ब्लॉक करो, ठीक है मेरे प्यारे भाई लोग, या जो भी मॉडरेटर्स है, प्लीज। अगर सिर्फ कोई इस्लाम की तारीफ कर रहा है तो उसको आप लोग टाइम आउट या ब्लॉक नहीं दो। अगर कोई अब्यूज कर रहा है और मोमिन है तो एक उसको वार्निंग दो, अगर नहीं सुनता तो उसको फिर उसके बाद आप जो है ना टाइम आउट और उसके बाद ब्लॉक करो। हल्का हाथ रखो थोड़ा। हाँ, चेकमेट भाई आ गए। बोलिए भाई। जी सर, तकी उस्मानी साहब मैंने, की हाँ जी, तफसीर, तकी उस्मानी साहब की तफसीर ही क्यों, मैंने आप सबसे पहले ये पूछा। क्योंकि वो अभी इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैं इब्ने कतीर ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं जिनकी तकी उस्मानी की जिनकी निस्बत। क्या 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 तकी उस्मानी की निस्बत आपके जो इब्ने एक कसीर एक हैं, बात वो इनसे ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं, उनकी क्यों ना एक पढ़ूं बात बोलो, एक बात बोलो, जी यहाँ पे आप जी, बात क्यों फेर रहे हैं, ये बताओ। मैं बात डर नहीं लग फेर रहा रहा, है मैं आपको सिर्फ, तकी उस्मानी साहब की तफसीर निकालने में, आपको ये बताओ। मुझे डर किसी से नहीं लगता, मैं क्यों? सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले लोगों को भी पता लग जाए कि हाँ जी, उन्होंने इल्म कहाँ से लिया है तकी उस्मानी साहब ने। इल्म इल्म उन्होंने इब्ने कसीर से लिए, लेकिन इब्ने कसीर में उतनी खुले तौर पे आपको समझ में नहीं आता जो आप लोग यहाँ पे लेके बैठ रहे हैं ना तफसीर। अगर लेके बैठेंगे भी तो आपको उतना खुले उसमें समझ में नहीं आएगा जितना आपको तकी उस्मानी साहब की तफसीर समझ में आएगी। तकी उस्मानी साहब की तफसीर, यानी कि जो बंदा 1980 की दिहाई में कहीं पे पैदा हो रहा है, वो आपके मुताबिक ज्यादा बेहतर तफसीर कर सकता है एज कंपेयर टू वो बंदा जो कि मोहम्मद के साथ, मोहम्मद के जमाने में पैदा पड़ा हुआ, अरबी को जानता है, रादर देन एक उर्दू जानने वाला पाकिस्तानी बंदा, वो ज्यादा अच्छा इसको जज करेगा। हेलो, आ रही है वो? जी, मैंने कहा कि कुरान को तकी उस्मानी पाकिस्तानी 1980 की दिहाई में पैदा होने वाला बंदा वो ज्यादा अच्छा जानता है एज कंपेयर टू आपके तमाम अर्ली स्कॉलर जो कि अरबी को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और बोलते हैं। भाई एक बात बता भाई, जी जी कुरान समझना है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। और वहां पे एडम एक बात मैं भी ऐड कर दूं, जी, इन लोगों का जाकिर नायक जो है वो तो वीडियोस में बोल रहा है कि सबसे बेस्ट तफसीर इब्ने कसीर है। बिल्कुल।
बिल्कुल। लेकिन अभी जो हम अभी तो सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं इनसे करना चाह रहा, ताकि ज़रा इनको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि समझ आना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, और समझ अगर आ जाए तो शायद चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। समझ आ जाए ना भाई, समझ आ जाए ना, जिस तरह से इस्लाम तेजी से दुनिया में फैल रहा है ना, तो वैसा हो जाएगा भाई, समझ में अगर आ जाए तो। समझ रहे ना आप? अच्छा, हाँ, अब जिस तरह से फैल रहा है ना इस्लाम, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह फैल देखो रहा है, माशाल्लाह। कितने बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है, कितनी खुश नसीबी है उनकी जो जा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सही है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जो जा रहे हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जगह है भाई। हम्म। अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको निकाल लिया इस्लाम से, बेदखल कर दिया। 414। जो चले गए ना समझ गए ना? हाँ, हाँ, चले भी चले गए पूरा की बात निकाल नहीं लिया। है। अभी हमारी बात सिर्फ ये है। चले गए वो लोग, खत्म। अब समझ रहे? हाँ, अभी है ना सूरा निकालिए, जिस सूरे में आप बात कर रहे हैं वो नहीं, पूरा सूरा पढ़िए, पहली बात ये है, उसका पहली तर्जुमा बात ये पढ़िए, है कि उसकी तफसीर तफसीर। पढ़िए। हाँ, मैं यार, एक तो आप लड़ाई ज्यादा करते हैं, रोते ज्यादा हैं। अभी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं अगर तो आप बोल बात रहा का हूँ भाई, जवाब नहीं देंगे, मैं रो कर रहा आगे हूँ नहीं ना चल सकता ना। देखिए, मुझे थोड़ा सा बात का जवाब दे दें, फिर मैं आपके साथ आगे चलता हूँ, ठीक है? मैं। पहले मुझे ये बता दीजिए कि तकी उस्मानी साहब की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमें सिर्फ उन्हीं की पढ़नी है? स्कॉलर है भाई वो। एक भाई, बात वो तो बोलो, फिर तिबरी अच्छा भी स्कॉलर है, समझाने के इब्ने लिए बोलता कसीर हूँ, भी स्कॉलर है। समझाने के लिए बोलता हूँ। कौन कौन बड़े मौलाना है यहाँ पे हमारे इस्लाम के अंदर अभी तो फिलहाल? तारिक जमील साहब है, तारिक मसूद साहब है, ठीक है, सब लोग हैं देवबंदी सर। है। उनके ये सिर्फ तो एक सिर्फ ये एक देखें, अरे मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी पूरी बात तो सुनिए, तभी तो जाके समझ आएगा आपको। तो इतने सारे स्कॉलर्स है, ठीक है, तो आप एक का ही सुनिए। ऐसा 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 आप बोलने वाले होते कौन? क्योंकि वो सब लोग जो पढ़ रहे हैं कुरान, जो तफसीर पढ़ रहे हैं, वो सब लोगों की तफसीर पढ़ते हैं वो लोग भी, तब जाके बयान करते हैं। लेकिन सबका एक ही बयान मतलब सेम होता है, मतलब सेम हदीस होती है, सेम कुरान की एक तफसीर के साथ वो जो बोलते हैं बयान में सेम होता है, सब कुछ अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप उस्मानी साहब की तफसीर खोलिए और मुझे पूरा सूरा पढ़ के दिखाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, उस्मानी साहब की तफसीर मैं आपके सामने खोल देता आप हूँ। बहस मत कीजिए। हाँ जी, चलिए। मैं खोल देता हूँ। अब हम उस्मानी साहब की तफसीर खोल रहे हैं इनके भाई के सामने, और जो कॉन्टेक्स्ट की आयतें हैं उनकी हम तफसीर पहले पढ़ेंगे, और अगर वो वही कह रही होंगी तो फिर ये चाहे पूरी सूरत पढ़ लें, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तफसीर उस्मानी लिखा, तकी उस्मानी आपके सामने है इस वक्त, ठीक है? जो आयतें आपको दिखाई थी कॉन्टेक्स्ट में, वो यही हैं। उन्होंने भी कॉन्टेक्स्ट इसका डिफाइन किया हुआ है। अगर हम चाहते तो इन आयतों की बदौलत उसके सर बुलंद कर देते, मगर वह ज़मीन पर झुक के रह गए और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ रहा। उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी वह जुबान लटका के हाँपेगा, अगर उसके हाल पे छोड़ दो तब भी जुबान लटका के हाँपेगा। ये मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वो कुत्ते की मिसाल दे रहा है अल्लाह। लिहाजा तुम ये वाकया इनको सुनाते रहो ताकि वो कुछ सोचें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत याफ्ता होता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाते हैं। और हमने जिन्नात और इंसानों में से बहुत से लोग हैं जिन्हों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उनके पास दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, कान है जिनसे वो सुनते नहीं। वो चौपाहों यानी कि डंगरों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए हैं। यही लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और इस्माए हसना अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं। ये आगे का कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया इस एरिया का। अब अल्लाह के नामों की बात आ गई। तफसीर पढ़िए। अब बात आती है यहाँ पे तफसीर, इसके नीचे वाले हिस्से में तफसीर है। आम जानवर उसी वक्त हाँपते हैं जब कोई बोझ उठाएं या उन पर कोई हमला करे, लेकिन कुत्ता ऐसा जानवर है जिसे सांस लेने के वक्त हाँपने की जरूरत होती है। तकी उस्मानी को भी इतना इल्म नहीं है कि कुत्ते को सांस लेने के लिए वो मुंह से जुबान इस वजह से बाहर निकालता है कि उसके बॉडी के ऊपर जो स्वेट पैदा करने वाले स्पेसेस नहीं होते, ग्लैंड्स नहीं होते, उसकी जुबान से वो स्वेटिंग पैदा करता है। इस वजह से कुत्ता जुबान बाहर निकालता है, वो हाँपता नहीं है। अल्लाह को भी नहीं पता था और तकी उस्मानी को भी नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अनपढ़ जाहिल मदरसा छाप बंदे हैं। यहाँ पे जो है वो पढ़िए आप। जिन हजरात मैंने अपना मत करिए आप, सुनिए एक्शन भाई, मैं अब अपनी बात नहीं यहाँ पे आप जो ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे चेक तुमसे नहीं बात कर रहा, लोगों से बात कर रहा हूँ ताकि उन्हें पता लग जाए कि कितने बेवकूफाना। नहीं, आप गलत, आप बेवकूफ बना। जिन हजरात ने अलग कॉन्टेक्स्ट पढ़ के चुप, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है।
جن حضرات نے اس واقعے کو بلاغ عام میں بلوغ کا واقعہ قرار دیا وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی بدعملی کی سزا اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑتی ہے، اس لیے اسے آیت میں کتے سے شبیہ دی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی ہرس ہے، کتے کا، اس نے پھونک ماری، کتا اپنی زبان نکال پہ ہرس لگتا ہے شاید کوئی چیز کھانے کی ہو۔ اس طرح جو شخص دنیا کی عظمت کے ساتھ ہر وقت دنیا کا مفاد حاصل کرتا ہے، اس کا حال اسی طرح ہانپتا ہے۔ ونس اگین، ہانپنا، کتا ہانپتا ہے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے۔ تقی عثمانی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، اس کے اللہ کو بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ یعنی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم میں لے جائے گا، لیکن یاد رہے تقدیر میں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کا کام کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، بلکہ تشبیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کے حالات کے پیش نظر یہ لکھ دے کہ یہ فیل ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اسے فیل ہونے پہ مجبور کر دیا، بلکہ اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ شاگرد محنت کرنے کے بجائے وقت ضائع کرے گا۔ آگے اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے اس ذکر اس کے سامنے جواب کے احساس سے غافل اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب یہی رہے گا۔ اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے، واضح رہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہے دونوں باتوں کو شامل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے۔ غفلت کا دور ہونے کا یہ رستہ ہے، بندہ اپنے پروردگار کی دونوں طرف سے پکارے، البتہ اس کو پکارنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں، لو جی اللہ کے اچھے اچھے ناموں تک آگے اس کے رسول نے بتایا نہیں ناموں کو پکار جائے، اس میں اسنا کے مقارف، لیکن اس تفسیر کے اندر جناب حضرت عزت مآب نے یہ بتایا ہی نہیں کہ جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا، یہ دیکھیے، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تقدیر کا ایک سینٹنس بول کے یہ پوری آیت کی تفسیر مس کر دی ہے آپ کے تقی عثمانی نے۔ پلیز اس آیت کی تفسیر دکھائیے مجھے تقی عثمانی سے۔ ایک بات بولوں، چپ 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 کر کے جو آپ بٹھا رہے تھے نا میرے کو یہاں پہ، ٹھیک ہے، یا 90 کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوا 90، میں نے سمپل یہ بات کی ہے کہ پہلے مجھے اس پوری میں تفسیر پڑھ دی آپ کے سامنے، جو میری یہ آیت ہے بیسک آیت کہ اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، جو کہ تقدیر کا بیسک ایسنس بنتا ہے۔ اللہ کی گمراہی کے بارے میں آپ کے تقی عثمانی نے کیوں نہیں لکھا؟ میں نے پوری حدیث پڑھ دی، پوری تفسیر پڑھ دی۔ تھوڑا نیچے ہٹائیے اس کو، نیچے ہٹا دیا تھا، میں نے پڑھ دیا تھا۔ مجھے میں بتا رہا ہوں نا آپ پڑھ کے کیا غلط سمجھا، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی۔ آئی ڈونٹ کیئر میں کیا غلط سمجھاؤں، میں نے ابھی جو پوچھا اس کا جواب دیں کہ تقی عثمانی صاحب نے، آپ کے تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کے اوپر جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان کیا، جبکہ سب سے امپورٹنٹ پیسج کے اندر، اللہ کی آیتوں کے اندر یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر ساری گیم بننی ہے۔ آپ اس کو نیچے ہٹائیے، اسی کا جواب دے رہا ہوں گائز یہ دیکھیے، گائز تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ دیکھیے کیا بھائی یہ تقی عثمانی ساحل بھائی، آپ کو بول رہا ہوں میں، تقی عثمانی صاحب کو دیکھیے آپ، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کبھی اس نے تم کو اسکول کالج کا رخ بھی کیا ہوگا۔ سمجھنا نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے، کوئی بات نہیں، ریلیکس، ٹیک اے چل، چیک میٹ، یو آر چیک میٹڈ۔ تم لوگ تو ہے نا اسلام سے ارے چیک میٹ بھائی اتنا توے پہ گرم کیوں رہتے ہو، تھوڑا رکو نا یار۔ ارے میری تو بات میں جواب دوں، ایک سیکنڈ ابھی دینا، چیک میٹ، یو آر چیک میٹڈ، جسٹ گیو می، ارے میں جواب دوں جسٹ گیو می 1 منٹ، جاؤ گے بھائی، جسٹ گیو می 1 منٹ۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا، میں نے تفسیر پڑھی ہے جو آپ نے پڑھوائی ہے۔ سیل پہ اس بندے کی شکل دیکھ کے کہیں سے فیل ہو رہا ہے یہ بندہ کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی اس نے ماسٹرز گریجویشن یا کسی اچھی جگہ سے پڑھا؟ بالکل بھی نہیں۔ سیل پہ دیکھیں، میں ان کو پہلے سے بولا کہ بھائی جان تقی عثمانی کی تفسیر آپ نے کیوں پڑھنی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔